See, the session has already started. So who has started chatting? Okay. What? Okay. So no need to mention here your gender, Mustafa. Okay. So let's start the session. Bismillahir Rahmanir Rahim. So let me tell you before I start my session that you guys are not supposed to interrupt me while I am speaking, right? I will give you a time, a definite time to address your queries, right? But in my session, you are not allowed to interrupt me. And I also can tell you that if you keep on chatting and writing, you are going to disturb me. Then I will not be able to deliver my lecture in time. In the last lecture, we also crossed the 40 minutes and our session ended. So this time, we are supposed to follow the time and we are supposed to cover our lecture timely. All right. So have we start now? We- So we have another person, another student in our session. I guess his name is Shams Khan. So welcome, Shams Khan. Are you hearing me? Yes, sir. Shams Khan, you can unmute your mic and uh, make yourself comfortable, and you're allowed to speak now. But when I start my lecture, you are not allowed to do so. Okay? Do you hear me, Shams? If your mic is not working properly, then you can also type. Okay? Okay. Shams, you can also type. Okay. Okay, let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is your teacher, AJ, and this is going to be a second lecture of our course. And I welcome to all of my students, the new and the old ones. So before wasting our time, we should cover a lecture in time. So without wasting our time, let's get to the topic now. So we learned in our previous lecture about the sentence, and we are working on the part one, basic English grammar. And now uh, today's topic is simple present tense. Now we have started our tenses. So the simple present tense is the first among all. So in this, we are going to cover uh, mm, the bullets as given below. What is present simple tense? When we use present simple tense, how to form sentences, positive, interrogative, negative, and then you will also be given the practice test. तो मैं उर्दू में एक दफ़ा तरजीह कर दूं, तर्जुमा कर दूं कि हम पार्ट वन बेसिक इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर कवर कर रहे हैं। उसका हमने सेंटेंस पहले कवर कर लिया था अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर काम करेंगे। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे आज के लेक्चर के अंदर कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है और वो हम कब कब इस्तेमाल करते हैं और उसको किस तरह से लिखते हैं, उसका सेंटेंस किस तरह से हम बनाते हैं। और सेंटेंस के तीन अकसाम हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव और तीसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। आखिर में इस सेशन के अंदर आपके लिए एक होमवर्क है, एक असाइनमेंट है, एक प्रैक्टिस टेस्ट है, वो भी आपने करनी होगी लाजमी। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, सिंपल टेंस है क्या? जैसे द सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हमेशा आपको जो ना इस तरह की बातें बताएगा कि वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप बातें करते हो। जैसे कि मैं सुबह के टाइम पे आठ आठ बजे नो 7 बजे उठता हूँ और 8 बजे मैं नाश्ता करता हूँ। तो इस तरह की बातें जो डेली रूटीन में होती हैं, जो हकीकी बुनियादों पे मबनी होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि जो सूरज है वो ईस्ट से उभरता है, तो ये एक हकीकी बात है।
ये फैक्चुअल एक बात बात है। तो हकीकी बात जब भी करनी होगी, जब भी रूटीन की बात करनी होगी, जब भी कोई आदत की बात करनी होगी, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर करेंगे। अच्छा, इसको सिंपल हम क्यों कहते हैं? इसको सिंपल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, ये बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, इस सिंपल टेंस के अंदर कुछ जो है ना, एक मेन वर्ब होता है, और मेन वर्ब के साथ एस लगती है एक कंडीशन के ऊपर। वो कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि सब्जेक्ट जो है वो आई है, आई यूज कंप्यूटर, मैं कहता हूँ मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ, तो ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है इस वक्त, प्लूरल यानी कि जमा। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके वर्ब, मेन वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, सही है। तो इधर यूजेस नहीं होगा, इधर सिर्फ यूज होगा। जब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगुलर होगा, यहाँ पे यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा अगर सिंगुलर होगा, यहाँ पे अगर ही आ जाता है फॉर सपोज। अच्छा, मुझे लिखने में बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि ये माउस नहीं है, लैपटॉप का कीपैड है। तो अगर यहाँ पे ही आ जाता है, ही, तो इसके साथ हम फिर एस लगाएंगे, ही यूजेस कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ऑल राइट। सो आगे चलते हैं। सिंगुलर और प्लूरल का मैं कॉन्सेप्ट दे दूं आपको। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं, जैसे कि कोई भी सिंगुलर नाम, जैसे मैं कहता हूँ अली, अली जो है एक सिंगुलर नाम है। ही, शी, इट, ये सारे सिंगुलर नाम है। अच्छा, दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे जो कि जमा होते हैं, प्लूरल होते हैं। सिंगुलर यानी कि वाहिद और प्लूरल यानी कि जमा। अच्छा, जमा कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू, दे, और प्लूरल नेम्स, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी जमा नाम जैसे कि स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट्स एस हो गई उसके आगे, आखिर में। तो इनके साथ हम वर्ब जो लगाएंगे, मेन वर्ब जो लगाएंगे, उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। जब प्लूरल होगा तो उसके साथ एस नहीं लगाएंगे, जब सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस लगाएंगे। अच्छा, तो आपको पहले मैं एक बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका डज, एक होता है आपका डज, और दूसरा होता है आपका डू, ठीक है। दो ये सिंगुलर जो है वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं सिंपल प्रेजेंट के। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये बात आपको जहन में रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो किस चीज, वो कहाँ पे काम आते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और जो दूसरा होता है मैन वर्ब, मैन वर्ब का मैंने आपको बता दिया कि वो जैसे कि ही यूजेस कंप्यूटर, तो यूज जो है वो मैन वर्ब है प्रेजेंट सिंपल का। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो है हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है कि वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, एक प्रेजेंट फॉर्म होती है, दूसरी पार्टिसिपल, और तीसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गो वर्ड है, एक वर्ड है गो, सही है, एक गो वर्ड है। और सॉरी, जैसे एक वर्ड है गो, उस गो वर्ड को हम इस तरह से जो ना, उसका फर्स्ट फॉर्म है गो, और उसका सेकंड फॉर्म जो है जिसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, वो होता है वेंट। वेंट, WENT। अगर मैं इधर टाइप कर पाऊँ तो आपको लिख के देता हूँ। एक तो वर्ब का जो है जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, दूसरा जो सेकंड फॉर्म है उसकी वो वेंट है, और उसकी जो थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं हम, वो है गॉन, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी ये है कि ये मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ, ये किस तरह से मिटेगा? हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। वाई, व्हेन डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि मैंने आपको थोड़ा इंट्रो में बता दिया कि जब भी हैबिट्स की बात करते हैं हम, या फिर रूटीन की बात करते हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। जैसे एक जुमला है, मैं कहता हूँ आई डू ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह नाश्ता करता हूँ,
तो ये क्या हो गई, मेरी आदत भी हो गई और मेरी रूटीन भी हो गई। तो जब भी रूटीन की बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। और मैं कहता हूँ फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ। अगर मैं किसी भी हक्कानी बात करता हूँ जो कि हक के ऊपर, सच के ऊपर मबनी होती है, तो वहां पे भी मैं सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करता हूँ टेंस। जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है वो कहाँ से उभरता है, ईस्ट से उभरता है। और फीलिंग्स या फिर ओपिनियन भी जब भी मैं देता हूँ, उस वक्त भी मैं सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इन माय ओपिनियन आई एम स्टूडेंट, मेरे ओपिनियन के मुताबिक मैं एक स्टूडेंट हूँ। इन माय ओपिनियन आई लाइक पिज्जा, जैसे मेरे ओपिनियन है, मेरा आई लाइक पिज्जा, ये मेरे ओपिनियन है। या फिर मेरी फीलिंग है, मैं कहता हूँ मुझे पिज्जा पसंद है, ये मेरी फीलिंग है। तो फीलिंग भी हम और ओपिनियन भी हम अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं या बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब भी स्केड्यूल स्केड्यूल करना होता है, कोई भी हमें इवेंट वगैरह कोई भी चीज़, फॉर सपोज मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि जो बस है वो सुबह 8 बजे निकलती है, तो मैं उसको कहूंगा द बस लीव्स एट 8 AM। अच्छा, तो ये क्या हो गया, स्केड्यूल, मैंने उसको एक टाइम बता दिया कि इस टाइम पे ये बस निकलती है। तो जब भी हम एक स्केड्यूल की बात करेंगे, इस किसी भी चीज के स्केड्यूल की बात करेंगे, तो वहां पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, सिंगुलर और प्लूरल का मैंने आपको पहले बताया कि सिंगुलर वर्ब्स जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई भी सिंगुलर नाम हो गया, जैसे अली हो गया, ही हो गया, शी हो गया या इट हो गया। तो जब सिंगुलर वर्ड जब सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट आएगा, तो उसके साथ वर्ब जो है आपका मेन वर्ब एस लेगा, एस लगेगी उसके वर्ब के आखिर में। जैसे कि अली, अली सिंगुलर एक सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम प्ले, मेन प्ले जो है वो मेन वर्ब है, प्ले क्या है, मेन वर्ब है। अच्छा, प्ले के साथ हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, अली प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो ये अली जो है वो सिंगुलर, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, लेकिन क्योंकि अली सिंगुलर था उस वजह से हमने उसके वर्ब, मेन वर्ब के साथ एस लगा दिया, अली प्लेज फुटबॉल। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी कि वो जमा होगा सब्जेक्ट, जैसे आई हो गया सब्जेक्ट, वी हो गया सब्जेक्ट, यू हो गया सब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट, या फिर प्लूरल नेम्स हो गए जैसे स्टूडेंट्स। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आपका जो वर्ब है वो एस नहीं लेगा आखिर में, तो आपका मेन वर्ब जो है एस नहीं लेगा आखिर में। ये इसकी एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में मैं इधर लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, अभी पहले हमने क्या लिखा था, अली प्लेज फुटबॉल। अली क्यों, क्योंकि अली जो था वो सिंगुलर था, वो एक वाहिद था, और उसके साथ उसके मेन वर्ब के साथ हमने एस जोड़ा था। अभी क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो जमा है, वो प्लूरल है, वी है, तो उसके वर्ब, मेन वर्ब के साथ हमने एस नहीं लगाया। तो ये जो ना चीज है जो हमने सीखनी है। और उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर दो किस्म के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है डज और दूसरा होता है डू। अच्छा जी, डज कब इस्तेमाल होता है, डज तब इस्तेमाल होता है जब आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, वो सिंगुलर हो। तो आपका सब्जेक्ट, यानी कि इधर देखें, इधर सब्जेक्ट आपका क्या है, अली है, वो क्या है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, डज नॉट यूज कंप्यूटर, ठीक है, डज लगेगा उसके साथ। अच्छा, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, अगर अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू लगेगा। जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ कि वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। अच्छा, वी डू नॉट, इधर देखिए डज नहीं लिखा मैंने, क्योंकि सब इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ठीक है, अगर इसका सब्जेक्ट ऐसे होता, फॉर सपोज अली होता, तो फिर डू नहीं लगाते हम, फिर वहां पे हम डज लगाते। आई बात समझ में, क्योंकि ये अभी वी था, ये जमा था, तो अब जमा के साथ हम डू लगाते हैं, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। आई बात समझ में?
ठीक है जी। अच्छा मैं बता दूं कि ये डू और डज जो है, ये सब जो है ना इस्तेमाल होते हैं जुमले के अंदर जब हम उनको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करते हैं। अच्छा, हम आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि सेंटेंस बनता किस तरह से है, ये इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं। तो ये उनका मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस हम किस तरह से बनता है। पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, मुस्बत जुमला जो होता है इसका, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस इस तरह से बनता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब देते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देते हैं। ठीक है जी। सॉरी सॉरी। ठीक है जी। पहले सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट देते हैं। अच्छा जी, सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट अगर आपका, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आई। आई क्या है? सब्जेक्ट है। ईट क्या है? मैन वर्ब है। ईट मैन वर्ब है। एन एप्पल, एन एप्पल है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका ये माना क्या हुई? मैं एक एप्पल खाता हूँ, या फिर मैं एक एप्पल, हाँ यही कहते हैं, मैं एक एप्पल खाता हूँ। मैं एक एप्पल खा रहा हूँ, वो एक अलग कंटिन्यूस में आ जाएगा। इसको हम कहेंगे उर्दू में, मैं एक एप्पल खाता हूँ। आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, राइट। तो ईट जो ईट है यहाँ पे, वो निशानदेही कर रहा है कि सब्जेक्ट जो है उसका वो प्लूरल है, इस वजह से वो एस नहीं ले रहा है। ठीक है। अभी नीचे देखते हैं कि ही है, ही ईट्स एन एप्पल। क्यों? क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ, मैंने आपको पहले बताया, मैन वर्ब के साथ हम एस जाते हैं। ही ईट्स एन एप्पल। तो इसी तरह से शी ईट्स होगा, इट ईट्स होगा, क्योंकि ये शी और ही ये सारे सिंगुलर है। अगर मैं यहाँ पे लिखता अली, तो अली भी सिंगुलर है, तो अली के साथ भी हम एस लगाएंगे, ईट के साथ। अली ईट्स एन एप्पल कहेंगे हम। ठीक है। तो जिस तरह से ये प्लूरल है, डब्ल्यू ई, वी, वी प्ले सॉकर, तो वी प्ले के साथ हमने एस नहीं लगाया। ठीक है। वी प्ले सॉकर एवरी वीकेंड। ठीक है। तो मैंने कहा है शी प्लेज सॉकर। क्यों? क्योंकि शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैन वर्ब एस लेता है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो कि हमें जहन नशीं करने पड़ेंगे। स्पेशल रूल्स क्या है? इफ द वर्ब एंड्स इन ओ, सी एच, एस एच, एक्स, आर, एस, एड, ई एस, गो, गोज, वॉच, वॉचेस, वॉश, वॉशेस। अच्छा, अभी इसकी मैं मिसाल देता हूँ। कह रहा है कि जब भी आपके में जो मैन वर्ब है, जो भी आपका मैन वर्ब है, उसको उसके एंड में जब भी इनमें से कोई भी लेटर आएगा एंड में, जैसे कि ओ आ गया उसके वर्ब के, मैन वर्ब के आखिर में, सी एच आ गया, एस एच आ गया, चाहे एक्स आ गया, या फिर एस आ गया आखिर में, तो फिर उसको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? प्लूरल बनाने के लिए हम करते हैं ई एस, ई एस ऐड करते हैं। ठीक है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। अली गोज टू स्कूल। अच्छा, वैसे तो अली जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो इस वजह से उसके मेन वर्ब के साथ आखिर में, मेन वर्ब को आखिर में देखेंगे, उसके मेन वर्ब जो है उसके आखिर में एंड में गो है, जी ओ है, देखिए इधर गो है। तो गो जब भी मेन वर्ब के एंड में ओ आ जाए, या सी एच आ जाए, या एस एच आ जाए, या एक्स आ जाए, या फिर एस आ जाए, तो उसको, उसके साथ हम ई एस जोड़ देंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक दूसरा कह रहा हूँ कि आई, आई, मैं कहता हूँ शी वॉच क्रिकेट मैच। मैं कहता हूँ शी वॉचेज क्रिकेट मैच। अच्छा, शी, अभी उसके बाद मैंने वॉच लगाया, वॉच क्योंकि वर्ब है, मैन वर्ब है, लेकिन क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वो सिंगुलर है, वो शी है, वो सिंगुलर है, तो उस वर्ब के साथ ई एस लगेगा आखिर में। उस मेन वर्ब के साथ ई एस लगेगा आखिर में। क्यों ई एस लगेगा? क्योंकि भाई हमने बता दिया है कि ये रूल है, जब भी वर्ब एंड होगा, जब भी वर्ब के आखिर में
ओ लेटर होगा, या सी एच लेटर होगा, या एस एच लेटर होगा, या एक्स लेटर होगा, या फिर एस लेटर होगा आखिर में, तो हम उसके साथ जोड़ देंगे ई एस। बात समझ में? तो अगर अगरचे आपका वर्ब, मेन वर्ब जो है उसके आखिर में वाई आ जाता है, तो उसको हम कैसे फिर लिखेंगे? उसको हम ई एस, आई ई एस में तब्दील कर देंगे। मिसाल के तौर पे अली स्टडीज इंग्लिश। अच्छा, वैसे तो हम लिखते हैं इस तरह से, वैसे तो हम इस तरह से लिखते हैं कि जो अली है, अली, अच्छा अली नहीं लिखा, अभी मैं लिख रहा हूँ वी स्टडी। अच्छा अली लिख रहा हूँ, sorry, अली स्टडी, इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ अली स्टडी, स्टडी पहले मैंने वर्ब लिखा है, ठीक है, लेकिन उसके आखिर में मैंने देखा वाई है, तो ये रूल है, जब भी वर्ब के आखिर में वाई आ जाए तो उसका वाई हम डिलीट कर देते हैं, उसका वाई रिमूव कर देते हैं, और उसके साथ हम ऐड कर देते हैं आई ई एस, आई ई एस, ठीक है। ये रूल याद रखें आप। अच्छा जी, अभी चलते हैं हम आगे। सेशन एंड होने में 10 मिनट बचे हैं, तो कोशिश करें उससे पहले एंड कर लें। अच्छा जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि पहले डू या फिर डज देते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे, डज अली यूज कंप्यूटर। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले तो आपको पता होना चाहिए, वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि सवालिया होते हैं, सवालिया जुमला जुमले होते हैं। इसका मैंने आपको पहले बता दिया था पिछले लेक्चर में, सेंटेंसेस वाले लेक्चर में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो किस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम किस तरह से जो है इंट्रोगेटिव बनाएंगे? तो उसकी फॉर्मेशन ये होती है कि पहले हम डू या डज लगाते हैं। डू या डज क्या होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं सिंपल प्रेजेंट के। तो पहले उसके हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद उसका सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद उसकी मेन वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मिसाल के तौर पे, डज तो मैंने आपको बता दिया, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ डज लगेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ डू लगेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं, एग्जाम्पल है, डज अली यूज कंप्यूटर, ठीक है, हम कहेंगे डज अली यूज कंप्यूटर। अच्छा, आपने पहले एक चीज नोट की थी कि हमने कहा था कि जब सब्जेक्ट जो अली है वो सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब के साथ एस लगेगा, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव में जब डज पहले आ जाए, उसके बाद हम उसके मेन वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे, सही है। उसके मेन वर्ब के साथ फिर हम एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस यूं समझ लो इधर आ गया, एस आ गया आपका, ठीक है। डज अली यूज कंप्यूटर, इस तरह से होगा, ठीक है। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल पेश करता हूँ। डू वी यूज कंप्यूटर, डू वी यूज कंप्यूटर, क्या हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? अभी देखिए, इधर मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया डू, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, सब्जेक्ट अली होता, तो मैं डज लगाता था, ठीक है। डू वी यूज कंप्यूटर, डू वी यूज कंप्यूटर, तो मैंने क्या किया, सब पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट मेन वर्ब लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया। तो ये इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। अभी नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है? अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस होता है जो नेगेटिव माने देता हो। नेगेटिव माने यानी कि नाकारी बातें करता हो, जैसे कि निगेट करता हो, जैसे कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है? अ, अच्छा, मैंने इसका मैं आपको बता दूं कि इसमें सब्जेक्ट होता है पहले, फिर डू या डज होता है, प्लस में नॉट होता है, प्लस में मैन वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे, पहले पहले मैंने दे दिया अली, सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, डज लगा दिया, डज, क्योंकि अली सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो डज लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे यूज कंप्यूटर। अली डज नॉट यूज कंप्यूटर। अच्छा, मैंने आपको बता दिया, जब हम डज लगाएंगे तो वह मेन वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है। इधर यूजेस नहीं होगा, इधर सिर्फ यूज होगा। अच्छा, अली डज नॉट यूज कंप्यूटर। अच्छा, वी दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। वी डू नॉट यूज कंप्यूटर, क्या? वी डू नॉट यूज कंप्यूटर, हम हम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते, हम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते। वी सब्जेक्ट हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट, नॉट जो रूल में है, नॉट प्लस मैन वर्ब, ये यूज मैन वर्ब है आपका, और कंप्यूटर जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। नेगेटिव ये सेंटेंस हो गया।
अच्छा, ये हमने पहले कवर कर चुके हैं, हेल्प सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं। अच्छा जी, अभी आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन में हम क्या करेंगे कि आपको ये एक एक्सरसाइज दी गई है, इसमें से आपको करेक्ट फॉर्म लगाने हैं, इस डैशेस के अंदर बताने हैं आपको। अच्छा, आई डैश लिव इन अ बिग सिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, आई लिव इन अ बिग सिटी। ठीक है, आई लिव इन अ बिग सिटी, ये सही हो गया क्योंकि आई जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगता वर्ब में। आई लिव इन अ बिग सिटी। शी डैश ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। अच्छा, शी ड्रिंक्स होगा या ड्रिंक होगा, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपको प्रैक्टिस शीट दी गई है, या आपने ये सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे इस ग्रुप के अंदर भेज देनी है। उसके अलावा ये एक्सरसाइज 2 है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। अच्छा, आपको कहा गया है कि आपने 5 सेंटेंसेस बनाने होंगे हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस के। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि मैंने आपको पढ़ाया, पॉजिटिव सेंटेंस, उसके आप अपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। और नेगेटिव सेंटेंस के भी आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। अच्छा जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट टू कंक्लूड दिस सेशन। तो होप that you have learned today's lecture, and if there is any question or confusion you can ask. अच्छा जी, कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में आज पढ़ाया। उसके अंदर हमने देखा कि सेंटेंस किस तरह से बनता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे उसके अंदर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि डू और डज का क्या इस्तेमाल है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स है, ये कब इस्तेमाल होते हैं, ये जब नेगेटिव सिग्नल सेंटेंस प्रॉब्लम है, इस्तेमाल आवाज करते हैं या आपकी फिर कट कट के। इंट्रोगेटिव इस्तेमाल करते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। और मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको बता दिए, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। जी भाई, कौन पूछ रहे हैं, नाम बताइए। डियर स्टूडेंट, शम्स कौन पूछ रहा था जी क्वेश्चन? सर। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? पूरी बचा बताइए, 1 मिनट बचा है। कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है? अच्छा, अगर आपको कोई भी सवाल हो इधर, वो मैं नहीं बता सकूंगा क्योंकि अभी टाइम 1 मिनट बचा है। तो आप ग्रुप के अंदर मैसेजेस कर सकते हैं, इसके हवाले से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप के जरिए, या फिर पर्सनली मुझे वॉइस कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। सर ये आप कल कट कट के आ रही है मेरी, अच्छा जी, हाँ, आपकी ये आवाज लीक कट रही होती है, है क्लियर नहीं आ रही। बार बार। आप टाइप कर सर मैं सकते कह हैं? रहा हूँ आपकी आवाज कट कट के सर आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, और बाकी ये ना ये बार बार क्लास लीव हो चुकी है तो ऑटोमेटिक। अच्छा जी, तो ये इसका बस सोल्यूशन फिर ये हो सकता है कि जो ना मैं आपको बाद में रिकॉर्डिंग दे दूंगा सारी। हाँ सर, रिकॉर्डिंग ठीक है क्योंकि बीच में बार बार हर 1 मिनट बाद बैक हो जाता है ऑटोमेटिक, फिर ज्वाइन मीटिंग, फिर इस तरह बार बार अच्छा, बैक हो जाता इस वक्त पता है है। आपकी आवाज भी कट कट हो रही है बार बार।